Hello everyone, how are you? I hope you all are doing well and not making any trouble to your parents in this tough situation. So, when we last met, we have discussed or we have started the chapter, and the chapter was the sexual reproduction in flowering plants. And in that chapter, we talked about the male and female reproductive parts of the flower in detail. Besides, we also took up the discussion related to the microsporogenesis and macrosporogenesis, right? And finally, uh, end up the offline classes by discussing the types of ovule, right? And from today onwards, we will discuss the next topic, and the topic is pollination. So let's begin. पॉलिनेशन पॉलिनेशन के बारे में आपको पता है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा तक, ठीक है। सो इस प्रोसेस को सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ऑल्दो यू आर अवेयर वेरी वेल अबाउट दिस प्रोसेस, बट फॉर द सेक ऑफ द simplicity and to continue this process, we are discussing the pollination. So pollination क्या है basically? So pollination, इसकी definition सबसे पहले हम देखते हैं। definition so pollination की definition क्या हो जाएगी? The transfer of pollen grains from anther to the stigma, is what is known as the pollination. So the transfer of the pollen grains from anther to stigma, ठीक है, is known as the respiration, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी respiration. This is not respiration, it's a pollination. ठीक है। डेफिनेशन के अलावा आप आगे हम देखेंगे कि जो पॉलिनेशन है उसके डिफरेंट टाइप्स क्या हो सकते हैं। सो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, right? Pollination can broadly be divided into two parts. Number one, self pollination, right? Means self pollination means what? Pollination within the plant, right? And the cross pollination means pollination between the two plants, right? So these are the two broad categories of the self pollination. Let's now discuss these two types in detail. So self pollination क्या हो जाएगा? बेसिकली pollination within the plant, right?
It can also be divided into two parts. Number one, autogamy, and number two is the gaetano गैमी. ठीक है. ऑटोगैमी के केस में क्या होगा, सपोज हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है, और इस प्लांट के अंदर आपके पास स्टेमेन है और एक तरह से पिस्टल है. सो स्टेमेन एंड पिस्टल पार्ट यू हैव. इसमें अगर फ्लावर के अंदर ही क्या हो रहा है कि एंथर से जो है पोलन ग्रेन्स रिलीज होकर के अगर ओवरी पर पहुंच रहे हैं विद इन दैट फ्लावर इटसेल्फ, राइट, then this process of pollination or this type of pollination is known as the self pollination, right. दूसरा अगर गैइटोनोगैमी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि सपोज हमारे पास इस फ्लावर में एक और इस प्लांट में एक और फ्लावर है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसकी जो ओवरी, ठीक है, या कह सकते हैं कि स्टिग्मा है. सो दिस स्टिग्मा विल रिसीव द पोलन्स फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. मतलब यहाँ पर जो पोलन्स रिसीव हो रहे हैं वो कहाँ से आएंगे, दूसरे फ्लावर से, लेकिन प्लांट अभी भी क्या होगा, सेम ही होगा. ठीक है, तो इस तरह के जो पॉलिनेशन है उसको हम क्या बोलेंगे, गैइटोनोगैमी. सो पोलन विल ट्रांसफर फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, है ना. तो मतलब ऑटोगैमी क्या हो गया, बेसिकली ऑटोगैमी मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. ठीक है, और अगर हम बात करते हैं किसकी, गैइटोनोगैमी की, तो गैइटोनोगैमी में क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. ठीक है, प्लांट इज द सेम but the pollens are transferring from one flower to the another flower, right. So this is what is your geitonogamy. So how can we write this autogamy? Autogamy is transfer of pollens or pollen grains from anther to the stigma of the same flower of the same plant. ठीक है, और गैइटोनोगैमी क्या हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम anther of one flower of one plant, anther of one flower to the stigma of another flower of the same plant, right. So this is what is your geitonogamy. I hope you understand it very well. And next is the cross pollination. So what is cross pollination? As I have already mentioned that cross pollination is the pollination between two plants or the transfer of pollen grains from one plant to another. ठीक है, सो इसमें किस तरह से होगा, सपोज हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है, उसके पास ये फ्लावर है, and we also have another plant and that plant also has one another flower. It also has
it has anther and this one has the stigma। ठीक है, सो यहाँ से एंथर से इस वाले प्लांट से, तो ये आपका प्लांट ए है, प्लांट ए, प्लांट बी। तो यहाँ से पोलन्स जो है ट्रैवल करके कहाँ पर पहुँच रहे हैं, दीज आर ट्रेवलिंग हेयर। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्लांट से दूसरे प्लांट में क्या हो रहा है कि फ्लावर्स से जो पोलन्स है वो ट्रांसफर हो रहा है ना। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम anther of one flower of one plant to the stigma of another flower of the stigma of another flower of the another plant। ठीक है, सो ये हो गया हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन sometimes also known as the genogamy और एलोगेमी। सो इस नाम से भी कभी आपसे पूछा जाए तो आप इस तरह से डिफाइन उसको कर सकते हैं। ठीक है, सो पॉलिनेशन। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सेल्फ पॉलिनेशन के केस में तो काफ़ी आसान होगा क्योंकि पॉलिनेशन एक ही प्लांट के अंदर हो रहा है। ठीक है, कभी तो कई बार तो जो है वो सिर्फ एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन के केस में क्या होगा कि जो पोलन्स हैं उनका ट्रांसफर करवाने के लिए हमें मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज प्लांट्स कैन नॉट मूव। तो वो मीडियम्स जो होते हैं जिनके थ्रू जो है पोलन्स ट्रांसफ़र होते हैं एक प्लांट से दूसरे में, उन मीडियम्स को हम क्या नाम देते हैं, एजेंसी या फिर फैक्टर्स। ठीक है, ये देखते हैं कि ये एजेंसीज और फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। सो एजेंसी क्या हो जाएगा, द फैक्टर्स और कैरेक्टर्स which helps in carrying out the cross pollination are known as agencies और एजेंसी। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्या आपका एजेंसी। एजेंसी क्या क्या हो सकती है, बोथ बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक। सो दीज कुड बी बोथ बायोटिक as well as abiotic, ठीक है, एग्जाम्पल्स इसके क्या क्या हो जाएंगे, सपोज इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं एयर के केस में इसको हम क्या बोलेंगे, एनिमोफिली। ठीक है, या फिर इस किससे हो सकता है, वाटर से, वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, देन इट विल बी नोन एज द हाइड्रोफिली। ओवरऑल इन केस ऑफ एनिमल्स it is zoophily
एंड्स के लिए ये हो जाएगा मिरमैकोफिली, एंड वर्ड्स के लिए क्या हो जाएगा ऑर्निथोफिली, इसी तरह से स्नेल्स के लिए होगा, हो जाएगा मेलैकोफिली, ठीक है। स्नेक्स के लिए क्या होगा, हो जाएगा, स्नेल्स के लिए हो जाएगा आपका